few weeks back, I began a very important series called Identifying Your Identity in Christ Jesus. Do you remember that? और कुछ सप्ताह पहले मैंने इस श्रृंखला को चालू किया जिसमें हमें अपनी पहचान प्रभु यीशु मसीह में जानना है। In between, you had many other people come and speak also. और उसके मध्यांतर में काफ़ी सारे लोग आके अलग अलग वचनों से उन्होंने बात किया। But I would like to encourage you, keep in track with what I'm sharing because it's a very, very powerful truths that can change your life. लेकिन मैं आपसे कहता हूँ कि जो श्रृंखला हमने चालू की, अगर आप इसके ऊपर में अपना लक्ष्य लगाएंगे तो काफ़ी अद्भुत प्रभु के वचनों से हमें सत्य की बातें जानने If मिलेगी। you are listening these kind of things for the first time, I would like to encourage you to go and listen to those things again and again. अगर आप पहली बार इस श्रृंखला को सुन रहे हैं तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप जाके इसको बार बार सुने। And as you believe the word of God, और जब आप प्रभु के वचनों पर विश्वास करते हैं as you apply the word of God, और आप उसको अपने जीवन में लागू करते हो, and I believe it's going to bring great changes in your और life. मैं विश्वास करता हूँ कि एक महान बदलाव आपके जीवन में लेके आएगा। Hallelujah. हालेलुया। I shared about the powerful things that happen at the point of our salvation. और मैंने आपसे कहा था कि जिस समय हमारा उद्धार होता है तो एक महान कार्य हमारे जीवन में होता है। Generally, many people get saved और साधारण तौर से काफी लोग बचाए जाते हैं and they don't completely understand what happened at the time of salvation. और वो पूरी तरह से नहीं समझते कि उद्धार के समय उनके साथ में क्या हुआ। Yes, they get saved. हाँ, वो बचाए जाते हैं They even get water baptized. और वो पानी का बपतिस्मा लेते हैं Probably even get filled with the Spirit and speak in tongues. और हो सकता है कि वो पवित्र आत्मा से भर जाए और अन्य अन्य भाषा भी बोले। And probably, not probably, mostly be part of some church. और हो सकता है कि वो किसी कलीसिया के साथ में जुड़ जाए And settle down in this church till they die. और उस कलीसिया में वो जुड़ जाते हैं जब तक कि वो मृत्यु नहीं आए। I want us to ask, is that all about salvation? क्या ये केवल उद्धार के बारे में यही सब चीज है? Did Jesus say you that you can be a part of a church? क्या यीशु ने इस प्रकार से किया कि आप किसी कलीसिया के सदस्य हो जाएंगे? Do you think that's all about Christianity? क्या मसीह जीवन इस प्रकार से होता है? It is what you just, all those things are just tip of the iceberg. और ये जो है टिप ऑफ द आइसबर्ग के समान है। There's some amazing, powerful things that happen at the point of a salvation. If you understand it, it's going to revolutionize our lives. और काफी अद्भुत और सामर्थ्य कार्य उद्धार के समय होता है। जब हम उसको समझेंगे तो वो हमारे जीवन को काफी बदल सकता है। If you remember, I had shared that at the point of salvation, God lifted us up from being in Adam and placed us in Christ Jesus. और मैंने आपको कहा था कि जब हम उद्धार को पाते हैं तब प्रभु हमें आदम से उठा के हमें मसीह में लेके आता है। Our position has changed. और हमारा जो स्तर है वो बदल जाता है। Our identity has changed. और हमारी जो पहचान है वो बदल Our जाती है। destiny has changed. और हमारा जो डेस्टिनी है वो बदल जाती है। Our purpose has changed. और हमारा जो उद्देश्य है वो बदल जाता है। Hallelujah. Hallelujah. I'm talking about by the virtue of being in Christ, what and all has happened in our life. और जब हम मसीह में होते हैं तो काफी सारा बदलाव हमारे जीवन में होता है, वो हम देख रहे हैं। I'm not sharing these things with you what's going to happen, but I'm sharing with you what has already happened in your life. और मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि क्या आपके जीवन में बदलाव आगे चल के होगा, लेकिन जो पहले से हो चुका है उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। Hallelujah. Hallelujah. Probably we are not yet recognized what has already happened in our life. और हो सकता है कि अभी तक के हम समझ नहीं पाए कि पहले से प्रभु ने हमारे जीवन में क्या किया है। If you recognize what has already happened in your life, it is going to be so life changing. और जब आप जान लेंगे कि पहले से ही जो चीजें स्थापित हो चुकी है वो आपको पता चल जाएगा तो आपका जीवन काफी बदल जाएगा। The first thing that I shared about was that in Christ we are a new creation. और पहले चीज मैंने जो बताई थी कि मसीह में हम एक नई सृष्टि है। Hallelujah. Hallelujah. We are a brand new creation. और हम एक नई सृष्टि उसमें है When we came into Christ Jesus. जब हम मसीह में आए। Second thing I shared about was in Christ we are the children of God. और दूसरी चीज मैंने बताई कि हम मसीह में परमेश्वर की संतान है। We are not orphans. और हम अनाथ नहीं हैं। We are not slaves anymore. और हम किसी के दास नहीं हैं। We are the children of the Most High God. और हम परमेश्वर सर्वप्रधान परमेश्वर के हम बेटे बेटियां हैं। Every relationships in the world is going to end one day. और इस संसार के हर प्रकार के रिश्ते नाते एक दिन खत्म हो जाएंगे। There's going to be a time there is not going to be an husband and wife relationship. How many husband and wives are happy about it? और एक ऐसा समय आएगा जबकि पति पत्नी का संबंध नहीं रहेगा। कितने पति पत्नी आनंदित है? I can see a lot of you smiling. In heaven we are not going to be husband and wives. और एक
समय ऐसा आएगा कि जब आप पति पत्नी के हिसाब से नहीं रह पाएंगे। Probably you might recognize each other. Okay, I'll not get there. That's not the point of my message today. एक दूसरे को आप जान पाएंगे लेकिन आप एक दूसरे के साथ में नहीं रहेंगे। There's going to come to an end for parent-children relationship. और माता पिता और बच्चों के बीच में का रिश्ता खत्म हो All जाएगा the friendship relations are going to end. और जितने हमारे मित्र मैत्री हैं वो भी संबंध टूट जाएंगे। But one relationship that's going to go on and on and on and on forever is God is our Father and we are His children. लेकिन एक रिश्ता जो लगातार बना रहेगा कि प्रभु हमारा पिता है और हम उसके बच्चे हैं। Hallelujah. 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 There's something powerful that I would like to share with you. The third truth, what has happened when we came into Christ Jesus. और तीसरी एक महान बात आपको मैं बताना चाहता हूँ, जबकि हम मसीह में आते हैं तो क्या होती है। They already displayed the title, so there's no point in asking this question, I guess. How many of you think you're righteous? और आप में से कितने लोग ये समझते हैं कि मैं एक धर्मी व्यक्ति हूँ? How many of you believe you're righteous? आप में से कितने लोग समझते हैं कि मैं एक धर्मी व्यक्ति हूँ? How many? Can lift up your hands. अपने हाथ उठा के आप बताएं। Others, what do you think about yourself? और दूसरे लोग क्या सोचते हैं अपने बारे में? You think you're horrible sinners, क्या आप- unrighteous people? आपको क्या लगता है कि आप अधर्मी हैं, आप काफी कुकर्म, आपने पाप किए हैं? And I hope by the end of this message you'll discover who you are. और इस श्रृंखला के अंत में आपको पता चलेगा कि आप कौन हैं। Turn your Bibles to 2 Corinthians chapter 5 verse 21. और दूसरा कुरिन्थियस उसका 5वां अध्याय 1 और 2 2 Corinthians chapter 5 verse 21. दूसरा कुरिन्थियस 5वां अध्याय उसका हम 21वां वचन देखेंगे। For our sake he made him to be sin who knew no sin, so that in him we might become the righteousness of God. और यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। What does it say? और ये क्या कह रहा है? God made Jesus who knew no sin for us. और यहाँ पे परमेश्वर ने मसीह को जो कि पाप को नहीं जानता था उसे ही पाप ठहराया है, So that in him we might become the righteousness of God. ताकि उसमें हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। Hallelujah. हालेलुया। How many of you are in Christ Jesus? आप में से कितने लोग प्रभु यीशु मसीह में है? According to this verse, it says you have become the righteousness of God. और इस वचन के हिसाब से हमें जो पता चलता है कि हम परमेश्वर की धार्मिकता में हम बन If गए। you are in Christ Jesus, अगर आप मसीह यीशु में हैं you have become righteous people. तो आप धार्मिक व्यक्ति बन गए हैं। There is a divine exchange that happened on the cross. और एक क्रूस के ऊपर में एक महान बदलाव वहां पे हुआ। As Jesus hung on the cross and died, जब यीशु उस क्रूस पे मारा गया he carried all the sin of the whole world upon him. और उसने पूरे संसार के पाप अपने ऊपर ले लिए He carried upon all the curses of the world upon और him. जितने भी संसार के श्राप थे अपने ऊपर ले He लिए bore all the shame, guilt and rejection upon him. और जितनी निंदा शर्म थी वो सब अपने ऊपर उसने ले He ली carried all the poverty and all the works of the enemy upon him. और शैतान के हर कार्य को और पूरी गरीबी को अपने ऊपर ले लिया। And there's something that he gave us which was his righteousness, his glory, his love, his acceptance, his blessings. In him we receive all that belongs to Jesus. लेकिन उस बदलाव के लिए उसने एक चीज हमको दी, उसकी धार्मिकता, उसका प्रेम और उसका आनंद, और जो वो था उसने हमें सब कुछ दिया। Hallelujah. 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 So Hallelujah. in Christ you have become righteous. और मसीह में हम धार्मिक बनते हैं। Now what does Bible refer believers as? और यहाँ पे प्रभु का वचन मसीहों को किस प्रकार से दर्शाता है? I don't know whether I have time to read all the verses, but at least one I will read and ask you to read the other verses by yourself. और एक वचन मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा और बाकी आप घर जाके पढ़ सकते हैं। Whenever Paul wrote letters to the churches, और जब भी पौलुस ने कलीसिया को पत्र लिखे, be it to the church at Corinth, और कुरिन्थ की कलीसिया को हो, be it to the church at Ephesus, एफेसस की कलीसिया को हो, be it to the church at Rome, और या रोम की कलीसिया को be लिखा it to हो, the church at Philippi or Colossae, फिलिपियो या कुलिसियो की कलीसिया को पत्र लिखा I हो, want you to carefully observe the way he greeted those people in those churches. वहां पे हम देखते हैं कि एक अद्भुत रीति से वो उन सबको एक आमंत्रण देता I'll है। just read one. और मैं एक पढ़ के आपको The सुनाऊंगा rest of it, go and just read the introduction verses of all those letters. और बाकी सभी पत्रों के आप
पहले अध्याय पहले वचनों को आप पढ़ सकते हैं। Ephesians chapter 1 verse 1. और इफिसियों की पत्री इसका पहला अध्याय और पहला वचन हम देखेंगे। Paul, an apostle of Christ Jesus, by the will of God, to the saints who are in Ephesus and are faithful in Christ Jesus. यहाँ वो इस प्रकार से लिखता है, पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित है, उन पवित्र और मसीह यीशु में विश्वासी लोगों के नाम जो इफिसुस में है। Probably I'll also read one more. 1 Corinthians chapter 1 verse 2. पहला कुरिन्थिय इसका पहला अध्याय और दूसरा वचन। To the church of God that is in Corinth, to those sanctified in Christ Jesus, called to be saints together with all those who in every place call upon the name of our Lord Jesus Christ, both the Lord and ours. परमेश्वर की उस कलीसिया के नाम जो कुरिन्थिस में है, अर्थात उनके नाम जो मसीह यीशु में पवित्र किए गए हैं और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं, और उन सब के नाम भी जो हर जगह हमारे और अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। The point that I want us to think about is how did Paul address the people in those churches? और यहाँ पे जो एक मुख्य उद्देश्य की बात जो है कि पौलुस उन कलीसिया के लोगों को किस प्रकार से संबोधित कर रहा He है, is addressing them as saints. और यहाँ पे वो उनको संत के रूप में उनको संबोधित कर रहा Do you है। think all those people were saints? क्या वो सभी लोग पवित्र थे, संत थे? The Greek word used for saints is hagios, which means holy and righteous ones. और जो यूनानी शब्द उसका जो इस्तेमाल किया गया है वो एगियोस है, जो इसका मतलब है कि पवित्र और धार्मिक ऐसा। You know, do you think that all the people in all those churches were holy people, righteous people? क्या आपको क्या लगता है कि उन कलीसिया के जितने भी सदस्य थे वो काफी धार्मिक थे और पवित्र थे? I don't have to tell you about what kind of people were in Corinth, और in the मेरे को church at Corinth. और मेरे को आपको बताने की जरूरत नहीं है कि किस प्रकार से कुरिन्थ की कलीसिया वहां पे थी। One of the guy was sleeping with his father's wife. और एक जो व्यक्ति था वो अपने पिता की बीवी के साथ में वो सोता था। Some are people who came for fellowship meetings or getting drunk. और जो प्रार्थना सभा के लिए लोग आते थे वो पियक्कड़ जैसे थे। Imagine pastors to come and preach to a drunken crowd. और आप सोचिए कि एक पासवान को आके पियक्कड़ लोगों को वहां पे संदेश देना पड़ रहा है। I'm thankful that I have a wonderful congregation who are awake and alert. और मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि मेरी अद्भुत सी कलीसिया है जो कि यहाँ पे जागरूक है और सचेत है। The church at Philippi, there was divisions in that church. और फिलिपियो की कलीसिया में विभाजन था। But why do you think Paul was referring to them as saints? लेकिन पौलुस उन सभी लोगों को एक पवित्र लोग या संत के हिसाब से क्यों कह रहा Because है? he understood what happens when a believer puts his faith in Christ Jesus. क्योंकि उसे पता चल गया था कि जब एक विश्वासी परमेश्वर मसीह पर भरोसा रखता है तो क्या होता है। Do you know how many times the word saints is used to refer to believers in the New Testament? और नए नियम में क्या आपको पता है कि कितने बार संत या पवित्र लोग के ये शब्द का इस्तेमाल किया गया है? Nearly 70 times. 70 बार इस शब्द का उपयोग We किया all गया है। know that if anything is mentioned in the Bible once, it is important. और आप सबको पता है कि अगर बाइबल में किसी चीज को एक बार लिखा गया तो वो काफी महत्वपूर्ण है। If it is mentioned twice, it is very, very important. और अगर 2 बार उसको लिखा गया है तो वो काफी महत्वपूर्ण है। If it is mentioned 70 times, और अगर 70 बार अगर लिखा गया है तो it's really, really important. और वो सही में भी काफी महत्वपूर्ण है। But we miss this truth very often. और लेकिन हम इस सत्य को कई बार खो देते हैं। If we actually put together all these words, saints, holy, righteous, these words are used at least 300 times to refer to believers in Christ Jesus. अगर इन 3 शब्दों को संत, पवित्र और धार्मिक ऐसे अगर इन शब्दों को जोड़े एक साथ में तो 300 से भी अधिक बार वो लिखे गए हैं। Except for once, nowhere in the Bible, the word sinners is used for believers. और केवल एक बार इस प्रकार से लिखा गया है कि विश्वासियों को पापी के रूप से लिखा गया है। That's only once in the letter of James. और वो याकूब की पत्री में हमें एक बार देखने मिलता Paul है। is so upset with his people, he rebuked them, calling them as sinners. और वो अपनी कलीसिया के लोगों से इतना निराश था कि वो उसको उन्हें पापी ऐसा संबोधित करता है। But the point that I want us to understand is once you are come into Christ Jesus, God sees you as saints. लेकिन जब आप मसीह में आ जाते हैं तो प्रभु आपको एक संत के रूप में देखता है। God sees you as righteous. और आपको वो एक धार्मिक व्यक्ति के रूप में देखता है। Righteousness simply means right standing with God. और
धार्मिकता का इसका साधारण सा अर्थ है कि प्रभु के सामने हम सही रीति से उपस्थित है This is called positional righteousness. और ये स्थानांतर रूप से हमारी धार्मिकता गिनी That जाती है। means this righteousness is not based on what we have done or are not done. This righteousness is based on what Jesus has done on the cross for us. और इसका मतलब यह है कि वो धार्मिकता हमने किस प्रकार से कार्य किया है, व्यवहार किया, उस पर निर्धारित नहीं होती है, लेकिन यीशु मसीह ने जो कार्य किया है उसके ऊपर ये धार्मिकता निर्भर है। Hallelujah. Hallelujah. Our righteousness is based on what Jesus has done on the cross. और जो हमारी धार्मिकता है वो यीशु मसीह ने जो क्रूस पे किया है उसके ऊपर निर्भर है। Let me ask you a question. और एक प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, If someone were to come and ask you, अगर कोई आपसे पूछता है tell me how do I become righteous? कि आप किस प्रकार से मैं किस प्रकार से धर्मी बन सकता हूँ, What would you answer them? तो आप क्या उत्तर देंगे? Or generally, if you would ask somebody, you go and ask somebody, how do you become righteous? What would be the answers they would give you? अगर आप किसी और व्यक्ति के पास जाके अगर पूछते हैं कि आप धर्मी कैसे बने, तो वो आपको क्या उत्तर देंगे? Most probably, you might hear, be a good boy, a good person. और हो सकता है कि लोग आपको इस प्रकार से कहे कि आप अच्छे व्यक्ति बने, They might say, help the poor, और गरीब लोगों की आप मदद करें, do some works of charity, और कुछ सेवकाई करे, चैरिटी or करे, to pray more, और अधिक प्रार्थना करें, go to whatever religious places, और धार्मिक स्थलों पे आप जाए, do some religious works, और धार्मिक कार्य आप कीजिए, or fast, और उपवास कीजिए, go to pilgrimages. और कई मंदिरों में आप जाए। Don't you think that's the kind of answers you will hear? और इसी प्रकार से आपको उत्तर मिलेगा। I want you to understand the difference between Christian faith and all the other religions is fundamentally this. और जो मध्य स्थान जो है, जो मसीह विश्वास और बाकी सभी लोगों का जो विश्वास है उसमें ये है, All the other religions in the world talk about you doing something to become righteous. और संसार के जितने भी धर्म हैं वो इस प्रकार से कहते हैं कि आपको कुछ कार्य करना है ताकि आप धर्मी बन सके। If you have to attain moksha, nirvana, this is what you need to do. अगर आपको मोक्ष हासिल करना है, निर्वाण हासिल करना है, तो आपको ये सब कार्य करना पड़ेगा। But Christian faith is not about what you can do. Christian faith is about what God has done for you. लेकिन मसीह विश्वास ये है कि आपको जो कार्य करना है उसके लिए नहीं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने जो किया है उस पे आपको विश्वास रखना है। So according to Bible, righteousness is not something you earn, but it is a gift that you receive. और ये बाइबल के आधार पे अगर हम देखें तो धार्मिकता ये चीज नहीं है कि जो आपको मेहनत करके हासिल करनी है, Read लेकिन this Romans chapter तोहफे के 5 रूप verse में आपको मिली है। 17. Romans chapter 5 verse 17. This, for some of you, this might be very new, but I want you to understand this if you have to live a righteous life. और रोमियो की पत्री 5वां अध्याय और 17वें वचन में हम देखेंगे कि किस प्रकार से एक धार्मिक जीवन हमें बिताना है। Let me tell you, if you don't get this truth, it is impossible for you to live a righteous life. अगर ये सत्य आप नहीं जानोगे तो आप धार्मिक जीवन नहीं बिता सकते। If you don't understand this truth, it is impossible for you to overcome sin in your life. अगर ये सत्य को आप नहीं जानोगे तो आप पाप के ऊपर में विजय नहीं पा सकते। Romans 5:17. रोमियो की पत्री 5वां अध्याय 7वां वचन, For if because of one man's trespass death reigned through that one man, much more will those who receive the abundance of grace and the free gift of righteousness reign in life through that one man, Jesus Christ. क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्मी रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वह एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। Did you observe that word, free gift of righteousness? Can you see that? और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो आपको एक वरदान जो तोहफे के रूप में मिला गया है Did you see धार्मिकता that? का। Yes. So when you believe in Christ Jesus, जब हम मसीह यीशु पर विश्वास करते हैं there are many gifts that you receive. और आपको काफी सारे वरदान मिलते हैं, One of the gifts that is given to you is a gift of righteousness. और एक धर्मी रूप के हिसाब से एक आपको एक भेंट मिलती है, एक तोहफा मिलता है। Hallelujah. हालेलुया। God calls you as righteous. और प्रभु आपको धर्मी बुलाता है, That is not that something that we earn. और ये नहीं कि जो आप उसको हासिल कर सकते हैं। Jesus did not say if you have to become righteous, you fast more, pray more, come to church more, give more. No, none of those things. Yes, you are called to do those things, but those things are not to earn righteousness, but those things are a way of living our Christian life. और यीशु ने इस प्रकार से नहीं कहा कि अगर आपको धर्मी बनना है तो आपको कलीसिया आना है, आपको अधिक भेंट देना है, आपको प्रार्थना करना है, आपको उपवास करना है। हाँ, वो सब आपको करना है, लेकिन उसी के ऊपर वो आधारित नहीं है। How do we receive this gift of righteousness? और ये धार्मिकता का जो
तोहफा है या भेंट हमको कैसे मिलती है। Paul explains this in the letter that he wrote to church at Rome, Romans chapter 4 verse 1 to 3. और रोमियो के पत्री में जब पौलुस उस पत्र को लिखता है तो हमें यहाँ पे देखने मिलता है। I want you to follow this with me because there's something very powerful that I'm going to share. आप मेरे पीछे इसको ध्यानपूर्वक सुने और उसके ऊपर मनन करें कि ये काफी महत्वपूर्ण है जो मैं बताने वाला हूँ। Sometimes Jesus said, verily, verily, I tell you the truth. और कई बार यीशु ने कहा कि सही में मैं तुमसे सत्य कहता हूँ। When Jesus said those statements, what was to come was very important. और जब यीशु ने इस प्रकार से कुछ वाक्य को कहे तो इसका मतलब था कि वो काफी महत्वपूर्ण चीज वो So बताने when वाला है। I'm saying something powerful is going to come, pay attention to it. और जब मैं आपसे कह रहा हूँ कि काफी महत्वपूर्ण बात आने वाली है तो आप उसके ऊपर में लक्ष्य लगाएं। Because many people don't get this. और क्योंकि कई लोग इस सत्य को नहीं जानते हैं So miss out on living the powerful Christian life that they're supposed to live. और एक सामर्थी मसीह जीवन को बिताना वो उस प्रकार से खो देते हैं। Actually, I would recommend you to read the entire chapter of Romans chapter 4 और रोमियो की इसकी चौथी पत्री को आप पूरा घर जाके आप इसे अच्छे से पढ़े in reference to Genesis chapter 15. और उत्पत्ति इसके 15 अध्याय के साथ में उसको देखते हुए Paul is actually expounding what happened in Genesis chapter 15 here in the life of Abraham. और अब्राहम के जीवन में जो कि उत्पत्ति इसके 15 अध्याय में लिखा गया था उसके बारे में पौलुस यहाँ पे प्रकटीकरण दे रहा Let है। me read the first 3 verses for you, and I would like you all to read afterwards at home the rest of the verses. और इस चौथे अध्याय के पहले 3 वचन को हम देखेंगे और बाकी का अध्याय आप घर जाके पढ़ सकते हैं। What then shall we say was gained by Abraham, our forefather, according to the flesh? इसलिए हम क्या कहें कि हमारे शारीरिक पिता अब्राहम से हमें क्या प्राप्त हुआ। For if Abraham was justified by works, he has something to boast about, but not before God. क्योंकि यदि अब्राहम कामों के द्वारा धर्मी ठहराया जाता तो उसे घमंड करने की जगह होती, परंतु परमेश्वर के निकट नहीं। For what does the scripture say? Abraham believed God, and it was counted to him as righteousness. पवित्र शास्त्र क्या कहता है? यह कि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। See, for Jewish people of Israel, Abraham was a towering figure. He was the father of faith. यहूदी लोगों के लिए जो कि इस्राएली लोग हैं उनके लिए अब्राहम एक पिता रूप एक व्यक्ति था। They took pride to be called the descendants of Abraham. और उनको काफी घमंड होता और वो अपना गर्व महसूस करते कि वो अब्राहम की संतान है। In fact, they had monopoly over Abraham, saying that Abraham only belongs to us. और वो हर समय अब्राहम को इस प्रकार कहते कि अब्राहम केवल हमारा ही है। But Paul is saying, no, listen to this. Abraham is not only for the Jewish people, but God chose Abraham for the blessing of the whole world. और अब्राहम केवल यहूदी लोगों के लिए नहीं था लेकिन परमेश्वर ने अब्राहम का इस्तेमाल किया ताकि पूरे संसार के लोगों को आशीषित कर सके। In fact, Jewish people had a belief that Abraham sits at the gates of hell, and you will not allow any Jew to enter the hell. और यहूदी लोग इस प्रकार से सोचते और उनका इस प्रकार से ख्याल होता कि अब्राहम जो है वो जो अधोलोक के फाटक है उसके सामने बैठा है और वो किसी भी यहूदी व्यक्ति को उस अधोलोक में जाने नहीं देगा। That was how much they put their faith in Abraham. और इतना विश्वास उनका अब्राहम के ऊपर होता। But here Paul is correcting their belief system. और यहाँ पे पौल जो है उनके जो विश्वास को सही कर रहा है। Paul is teaching through Abraham how to attain righteousness. और पौल उनको बता रहा है, सिखा रहा है कि अब्राहम के द्वारा हमें कैसे धार्मिकता मिलनी Paul चाहिए। takes the example of Abraham and tells his people, how do you think Abraham became a righteous man? और अब्राहम का उदाहरण लेके वो वहाँ पे यहूदी लोगों को बता रहा है कि अब्राहम किस प्रकार से एक धर्मी व्यक्ति बना। If you read this chapter, you will understand that Abraham is an example and a model not only for the circumcised Jewish people but also for the uncircumcised Gentiles as well. और यहाँ पे जब हम पूरे अध्याय को हम देखेंगे तो वहाँ पे हमें पता चलता है कि अब्राहम केवल उदाहरण उन खतना किए हुए यहूदी लोगों का ही नहीं लेकिन उन खतना रहित अन्य जातियों के लिए भी वो है। Because God had declared Abraham righteous much before he was circumcised. और खतना होने से कई वर्षों पहले परमेश्वर ने अब्राहम को एक धर्मी व्यक्ति रूप के स्थापित किया था। God comes to Abraham in Genesis chapter 15. और प्रभु अब्राहम के पास में
उत्पत्ति के 15वें अध्याय में आता है। Probably at that time he was, say, around 86 years old. और उस समय में वो 86 वर्ष का होगा। By then God had blessed him with everything. He was a rich man, और तब परमेश्वर ने उसको काफी आशीषित किया था, वो काफी धनवान व्यक्ति था, but he had no son. लेकिन उसके कोई संतान नहीं He थी was so discouraged. और वो काफी निराश था। God comes to him in that moment of discouragement. और उस निराशा के समय में परमेश्वर उसके पास आता And है God gives him, reminds him and reassures him and gives him the same promise again. और परमेश्वर उसको पुनः उस वचनों को जो वाचा उससे बांधी थी उसे स्थापित करता What है। was the promise? और वो वायदा क्या था? I'm going to give you a son. और मैं आपको एक संतान दूंगा। How old was Abraham? अब्राहम कितने वर्षों का है? 84. और वो 84 वर्ष का How है। many years was Sarah? सारा कितने वर्ष की थी? 10 years less than him, 74. और 74 वर्ष की वो थी। So she had well past the age of childbearing. और वो बच्चे पैदा करने की जो आयु होती है उससे काफी वृद्ध आयु में But थी। Bible says Abraham believed. लेकिन बाइबल इस प्रकार से कहती है कि अब्राहम ने विश्वास किया And God counted that belief as righteousness unto him. और परमेश्वर ने अब्राहम के उस विश्वास को धार्मिकता गिना। In Genesis chapter 16, he is around 86 years old when Ishmael was born. और उत्पत्ति के 16वें अध्याय में हम देखते हैं कि अब्राहम 86 वर्ष का है जब इश्माइल पैदा In हुआ। Genesis chapter 17, when he was 99 years old, God comes to him and asks him to perform circumcision. और उत्पत्ति के 17वें अध्याय में हम देखते हैं कि जब वो 99 वर्ष का था तब वहाँ पे उसको खतना करने के लिए वहाँ कहा गया। So if you do your calculation, God declared Abraham righteous. His time of salvation at least 16 years before he was circumcised. और यहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम को धर्मी व्यक्ति जब कहा वो 16 वर्ष पहले था जबकि उसका खतना हुआ उससे। So all this Paul is trying to tell you, guys, you will not be able to become righteous by keeping the law. You will become righteous by faith. और पौलुस यहाँ पे रोमियो के लोगों को इस प्रकार से कह रहा है कि आप धर्मी न्याय को के कार्य को करने से नहीं होगे लेकिन विश्वास रखने से आप धर्मी बनोगे। But I want you all to focus upon this. Abraham believed, God takes that belief and counts him as righteous. और यहाँ पे हम देखते हैं कि अब्राहम ने विश्वास किया, परमेश्वर ने उस विश्वास को लिया और उसे धार्मी व्यक्ति कहा। Even today, righteousness comes to us not by our works but by faith. और आज भी जो हमारी धार्मिकता है वो किसी कार्य की वजह से नहीं आती, लेकिन जब हम प्रभु पे विश्वास करते हैं उससे हम धर्मी कहे जाते I'll हैं। tell you why. और ये इसलिए है, I'm going very slow, taking time so that you will really, allow these thoughts to go deep into you. और मैं धीरे इसलिए जा रहा हूँ ताकि इन विचारों को आप अपने मनों में स्थापित करेंगे और समझेंगे कि ये क्यों है। In Genesis chapter 15, और उत्पत्ति इसके 15वें अध्याय when में God declared him as righteous, और जब प्रभु ने अब्राहम को धर्मी कहा, Abraham had already done many good works in his life. अब्राहम ने काफी सारे अच्छे कार्य अपने जीवन में किए थे। For example, और उदाहरण के तौर पे in Genesis chapter 12, when God called him to come out of his people, leaving his household, leaving his possession, leaving his property, he obeyed. He came out to go to a land which you didn't know where he was going. और उत्पत्ति के 12वें अध्याय में हम देखते हैं कि जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया अपने घर को छोड़ के, तो उसने उस वचनों को पालन किया और अपना घर छोड़ के उस देश में गया जिसको उसको पता भी नहीं था। But did God count him as righteous because of that act of obedience? क्या परमेश्वर ने उस आज्ञा का पालन करने के लिए अब्राहम को धर्मी ठहराया? No. नहीं। Later, there was a rift between him and Lord's servants, and when he enters the promised land, Abraham tells Lord to take the first preference, to take whatever he wants, and was willing to take whatever he rejected. और उसके बाद में हम देखते हैं कि लोट और अब्राहम के बीच के लोगों में कुछ अनबन होती है, और वहां पे हम देखते हैं कि अब्राहम लोट को कहता है कि तुझे जो अच्छी जगह है वो भूमि तू ले ले। Is that a great act? और क्या ये एक महान कार्य उसने किया? Yes, but was he counted righteous because of that? हाँ, ये एक महान कार्य था, लेकिन क्या उसके वजह से वो धर्मी ठहराया गया? No. नहीं। Later, some 4 kings of the east, they come against Sodom and Gomorrah where Lot lived, and they had taken him along with them as captive. और वहाँ पे 4 और राज्य के लोग राजा आते हैं और वहाँ पे लोट को वहाँ से वो लेके अपने बंदीवास में लेके जाते हैं। Abraham gathered up some of his servants, goes to a battle against them, fights and brings Lot back. और
अब्राहम अपने कुछ लोगों को जमा करता है, वहां पे जाके युद्ध करता है और लोट को वापस लेके आता है। Was it a good thing? क्या ये अच्छा कार्य था? But was Abraham counted as righteous for that good thing? क्या अब्राहम धर्मी इसलिए ठहराया गया है कि उसने वो अच्छा कार्य किया? No. नहीं। Later on, when Abraham was on the way, the king of Sodom meets him and offers him so much of gold and all the spoils of the battle. He asks him to take, but Abraham did not touch even single thread of it, saying that I will not let any man take glory for the blessings that I receive from the Lord. और उस युद्ध के बाद में जब अब्राहम वापस आता है तो सदोम का राजा आके कहता है कि ये जितने भी लूट है उसमें से तू ले ले, लेकिन अब्राहम कहता है कि नहीं, परमेश्वर को जो महिमा मिलनी है उसमें से मैं कुछ भी नहीं लूंगा, सब महिमा परमेश्वर को मिलेगी। Was that a great act? तो ये एक महान कार्य था। But was that what counted him to become a righteous person? इस वजह से क्या अब्राहम धर्मी ठहराया गया? No. नहीं। Then he meets this person called Melchizedek. और उसके बाद में वो मलकीसदेक से मिलता है। He was both priest and a king. और वो एक याजक और राजा है। Abraham gives him tithe. और अब्राहम उसे दशमांश देता है। Melchizedek gives him the bread and the wine. और मलकीसदेक उसे रोटी और द्राक्षा देता है। Did this act was counted as righteousness for Abraham? तो ये कार्य क्या अब्राहम के लिए धर्मी ठहराया गया? No. नहीं। So what I'm trying to say, तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे? all these good works that Abraham did not count him to be a righteous person. और जितने भी अच्छे कार्य अब्राहम ने किए उन सब को लेके वो धर्मी ठहराया नहीं गया। Did Abraham did some bad works too? क्या अब्राहम ने कुछ गलत कार्य भी किए थे? Was he a perfect man? क्या वो सिद्ध व्यक्ति था? Was he a sinless man? क्या उसने कभी पाप नहीं किया? There are wrong things that he committed before being called as righteous. और उसने कई गलत कार्य किए जब वो धर्मी कहलाए जाने से पहले। There are wrong things that he committed after being righteous. और धर्मी कहलाने जाने के बाद भी उसने कई गलत कार्य किए। Before being called as righteous, once he went down to Egypt, और एक बार वो इजिप्ट को गया धर्मी कहलाने से पहले। he knew his wife was Miss Universe, और उसकी जो पत्नी थी वो मिस यूनिवर्स थी उस समय की। a 74-year-old lady. और 74 साल की बुजुर्ग महिला। But you can imagine how beautiful she was at that age. और आप समझ सकते हैं कि वो कितनी सुंदर होगी उस आयु में भी। And he tells her, please tell this king as you're my sister. और वो कहता है कि उस इजिप्ट के राजा को तू कहे कि तू मेरी बहन है। Was that a good thing Abraham did? क्या ये अच्छा कार्य था जो अब्राहम ने किया? No. नहीं। After that he repeats the same thing again. और उसके बाद में ये कार्य को फिर एक बार वो दोहराता है। Some of our old habits die hard. और जो हमारे जो पुराने जो कार्य है वो काफी कठिन होके वो खत्म होते Be हैं। very careful about all the sins of your past. It has a way of coming back to you again and again. जो हमारे पुराने जो पाप है हम उससे सतर्क हैं क्योंकि उनकी आदत है कि वो बार बार हमारे पास आते हैं। Satan knows your weaknesses very well, beloved. शैतान हमारी जो कमजोरी को वो बहुतायत से जानता है। At different point of times in your life, he keeps on bringing those temptations again and again. You have to be very careful about it. और हमारे जीवन के कई क्षणों पे वो पुरानी उस परीक्षाओं को फिर एक बार लेके आते In रहता है। Genesis chapter 20, he goes down to a place called Gerar, where Abimelech was the king. और उत्पत्ति इसके 20वें अध्याय में हम देखते हैं कि गेरार इस प्रदेश में जाता है जहाँ अबीमेलेक राजा है। Again, he tells Sarah to tell him that she is her sister. और फिर एक बार वो अपनी पत्नी सहरा से कहता है कि इस राजा से तू कहे कि तू मेरी There's बहन है। another great blunder that Abraham committed in his life, who actually is the main reason for all that's happening in the Middle East today. और एक और बहुत बड़ा वो गलत कार्य करता है जिसकी वजह से कि इजिप्ट में जो अभी हो रहा है हम देखते मिडिल ईस्ट में जो हो रहा है उसके हम देखते हैं। What happened when it was taking time for the promise of God to come to pass in his life? जब वो परमेश्वर के वायदे को पूरा होने के लिए वो देख रहा था अपने जीवन में। He and his wife thought they'll help God. और उन्होंने सोचा, उसने और उसकी पत्नी ने सोचा कि हम परमेश्वर की मदद करते हैं। Marriage is made Hagar और अपने दासी हागार से वो विवाह करता है and gives birth to Ishmael. और इश्माइल को पैदा करता है। What a blunder. और देखते हैं कि हम कितना Even after नुकसान हुआ। 6,000 years, we are still facing the consequences of the decision our father of faith Abraham did. और 6000 वर्ष के बाद भी हम देखते हैं कि उस निर्णय को जो हमारा पिता अब्राहम ने लिया था उसका संघर्ष अभी भी जारी है। What I want you to understand is this. और मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ, Did Abraham had good works? क्या अब्राहम ने अच्छे कार्य किए? Yes or no? हाँ या ना? Did Abraham had bad works? क्या अब्राहम ने गलत कार्य किए? Did his good works make him righteous person? क्या उसके अच्छे कार्य ने उसे धर्मी व्यक्ति बनाया? Did his bad works take away his righteousness? और उसके गलत कार्यों से क्या उसकी धार्मिकता चली गई? What am I saying? मैं क्या कहना चाहता हूँ? It doesn't matter how you live. और ये
ऐसा नहीं कि आप कैसा भी अपना जीवन व्यतीत करें। Am I saying whether you do good things or bad things, it doesn't matter. Is that what I am saying? क्या मैं ये कह रहा हूँ कि आप चाहे अच्छे कार्य करो या गलत कार्य करो, कुछ मायने नहीं रखता। Before you come to that conclusion, let me tell you, everything has its consequences. और ये निर्णय पे आप आने से पहले आप एक चीज को समझ लीजिए कि हर एक चीज का प्रति उत्तर मिलेगा। If you do good, it has its blessings. अगर आपने कुछ अच्छा किया तो आपको अच्छा प्रतिफल मिलेगा। If you do bad, it has its consequences. You have to face it. There is no two ways about it. अगर आपने कुछ गलत किया तो आपका उसको सामना करना पड़ेगा और उसका आपको गलत उसका समय मिलेगा। But लेकिन I want you to hear this. It does not affect your righteousness, your right standing before God. लेकिन वो आपकी धार्मिकता और प्रभु के सामने जो आप किस प्रकार से खड़े उसको वो नहीं बदलता। If you understand this is very, very powerful. और आप अगर इसको समझेंगे तो काफी महत्वपूर्ण है। If God would tell you, in order for you to become righteous, you need to do good works. अगर परमेश्वर आपसे कहे कि अगर आपको धर्मी व्यक्ति बनना है तो आपको अच्छे कार्य करना है, You can imagine the high, perfect, holy standard of God. तो आप क्या समझ सकते हैं जो परमेश्वर जो कि पवित्र है उसका जो स्तर है कितना ऊंचा है। Can anybody reach the standard of God? क्या हम उसके उस पद तक के उसके मापदंड तक हम पहुंच सकते हैं? If it would have possible for us to live a righteous life through good works, then what would have been the need for Jesus to come and die on the cross? और अगर हम इस प्रकार से अच्छे कार्य के द्वारा अगर धर्मी बन सकते तो यीशु मसीह को क्रूस पे मृत्यु लेने की जरूरत नहीं थी। Secondly, if God would tell us your bad deeds will take away your righteousness, then who can be righteous? अगर दूसरा चीज अगर हम देखेंगे कि अगर आपके जो गलत कार्य है वो आपकी धार्मिकता को लेके जाएंगे तो कौन व्यक्ति धर्मी बन सकता है? Till the end of our life, we live in the flesh, we have our weaknesses, we'll all have times of failure. Thank God, God did not take away righteousness because of our bad deeds. और हम इस संसार में रहते हैं और हम एक शारीरिक जीवन बिताते हैं तो हम कई बार गलत कार्य कर सकते हैं, लेकिन धन्यवाद हो प्रभु का कि उसकी हमारी धार्मिकता उसमें I want नहीं us to है। understand is we have been made righteous by faith alone. और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि हमें केवल विश्वास के द्वारा हम धर्मी ठहराए गए It's हैं। not what you have done and what you have not done, but your righteousness is based on what Christ Jesus had done on the cross. और ये इस पर स्थिर नहीं करता कि आपने क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन इस पर स्थापित होता है कि यीशु मसीह ने उस क्रूस पे जो किया उसके द्वारा हम धर्मी If you ठहराए। understand this, you'll be free from all your guilt and condemnation. और अगर आप इसको समझ जाएंगे तो आप आपकी हर प्रकार की निंदा और अपमान से आप दूर हो जाएंगे। Romans 8:1 says, there is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus. और रोमियो 8 इसका पहला अध्याय इस प्रकार से कहता है कि इसलिए अभी जितने भी लोग विश्वास करते हैं उनके लिए कोई दंड की आज्ञा नहीं है। Whenever you fall into sin, Satan wants to make you guilty and put you into condemnation. और कई बार जब आप पाप करते हैं तो शैतान हर समय आपको निंदा और अपमानित ऐसा बनाता है। But when you respond to it by faith, I've been made righteous by Jesus. लेकिन आप विश्वास के द्वारा अगर आपका उसका प्रत्युत्तर देंगे कि यीशु मसीह के द्वारा मैं धार्मी ठहराया गया हूँ। When I fall into sin, yes, I need to come back to God, repent of it and ask forgiveness for those sins, but that's not going to affect my position before God. हाँ, मैं पाप में गिरा था, आपको उसके लिए पश्चाताप करना है, माफी मांगनी है, लेकिन आपका जो पद है, आपका जो स्तर है प्रभु के सामने वो कम नहीं होगा। See, there's two ways of living your Christian life. Okay, I'll close with this. और दो प्रकार से हम मसीह जीवन बिता सकते हैं। Either you can think you're a sinner, wretched person, आप ये सोच सकते हैं कि मैं पापी हूँ और काफी बुरा व्यक्ति हूँ, or you can think that I'm a righteous person in Christ Jesus. और आप दूसरा ये सोच सकते हैं कि मसीह यीशु में मैं एक धर्मी व्यक्ति हूँ। I want you to think with me which is a better position to take. और ये कौन सी चीज है जो कि अच्छी स्तर पे हमको लेके जा सकती If है। you think you're a sinner, अगर आप सोचेंगे कि आप पापी है what will you end up doing? तो आप क्या करेंगे, अंत में उसका क्या होगा? Proverbs 23:7 says, for as a man thinks in his heart, so is he. और नीति वचन उसके 23वें अध्याय 7वें वचन में कहता है कि जिस प्रकार से मनुष्य का हृदय सोचता है मनुष्य उस प्रकार से होता If है। you think you're a sinner, obviously you'll end up sinning. अगर आप सोचेंगे कि मैं पापी हूँ तो उसका अंत आप पाप में ही होगा। And when you sin, और जब आप पाप करोगे you know how will you respond? तो आप किस प्रकार से उसका उत्तर देंगे? After all, I'm a sinner. और मैं वैसे ही पापी हूँ, What can I do? मैं क्या कर सकता हूँ? I'm a human being, I'm in flesh. और मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ, मैं शारीरिक जीवन बिताता हूँ You will feel helpless and weak. और मैं सब आप स्वयं को कमजोर ऐसा महसूस But करेंगे। when you think you're a righteous man in Christ Jesus, लेकिन जब आप सोचेंगे कि आप यीशु मसीह में एक धर्मी व्यक्ति है,
then when you commit sin, जब आप पाप करोगे you will take that sin seriously. और उस पाप को आप गंभीरता से I लेंगे am a righteous person in Christ. और आप कहेंगे कि मैं मसीह में तो एक धर्मी व्यक्ति How हूँ am I going to allow this sin rule over me? और कैसे मैं इस पाप को अपने ऊपर राज्य करने No, दे सकता I'm हूँ? going to overcome it. नहीं, मैं इसके ऊपर विजय प्राप्त I'm going to करूंगा, fight over it. मैं उसके वजह से लड़ूंगा Understanding your position in Christ Jesus. और मैं ये जानूंगा कि मेरा स्तर प्रभु यीशु मसीह में क्या So है। when you think you're righteous, you have more possibility, greater possibility of overcoming sin. जब आप स्वयं को धार्मिक ऐसे समझोगे तो आप उस पाप के ऊपर में विजय प्राप्त कर सकते हो। You see, the difference between the sins that you committed before becoming a believer and after becoming a believer is this. Both the times we sin, no, but there's a difference. और जो मसीह होने से पहले आपने जो पाप किए और बाद में जो पाप करेंगे उसमें एक अंतर है। As saints, we are not sinless, but we sin less. और संत का होने का मतलब ये है कि आप पाप से विपरीत नहीं है, लेकिन आप कम पाप करते हो। I'll tell you this old example of pig and lamb or sheep. और एक साधारण सा उदाहरण आपको दूंगा, एक सुअर का और एक मेमने का। How many of you know that pig loves cleanliness and wants to be tidy? और आप में से कितने लोगों को पता है कि जो सुअर है उनको कितना अच्छा साफ सुथरा रहना पसंद है? How many of you think that like how we all dressed up and spent so much good time before mirror, to come, pigs love to do that. और आप में से कितने लोगों को पता है जो ये सुअर होता है उसको कितना अच्छा लगता है कि वो तैयार होके साफ सुथरा रहे और कितना अच्छा वो बन के आता We है। all know that pigs love to be in dirt. हमको सबको पता है कि उसको कीचड़ और मिट्टी It में अच्छा लगता enjoys है to roll over and enjoy the filth and the trash and the mud. और उसको कीचड़ मिट्टी और उसमें रहना उसको काफी अच्छा लगता है, वो उसी में रहता है। If anybody tries to bring it out of the dirt and want to clean it up, it feels like you're torturing it. और अगर कोई उसको वहां से निकाल के उस कीचड़ से निकाल के साफ करने लगेगा तो उसको लगता है कि कोई मुझे ताड़ना दे रहा है। That is how with the sins that we commit before becoming a believer. और यही हमारे पाप है जो हम पहले मसीह होने से पहले जो होते हैं। We enjoy being in sin. और हमको आनंद होता है उस पाप में रहने से। It gives us pleasure. और उसमें हमें काफी आनंद मिलता है। Every day we wake up planning how to indulge today in our pleasures. और हर दिन हम उठते हैं तो हम सोचते हैं कि उस पाप में मैं कैसे और आनंद से रह सकता हूँ। Believers are like this sheep. और जो विश्वासी है वो इस मेमने के हिसाब से है। Sheep don't like dirt. और जो ये भेड़ है वो उनको मट्टी या गंदगी पसंद नहीं If है। it happens to fall in a dirt, अगर वो भेड़ उस मिट्टी में चली जाती है sheep cries for attention of the shepherd. और वो रोती है और चिल्लाती है ताकि वो जो चरवा है उसको ध्यान दे। It screams till the shepherd comes and cleans it up and tidies it up. और वो इस प्रकार से चिल्लाती है तब तक के कि वो चरवा आके उसको साफ न करे। That's how we as believers are. और उसी प्रकार से एक विश्वासी होने के नाते हम When we sin, जब हम पाप करते हैं we scream to God for help. हम परमेश्वर को पुकारते हैं कि वो हमारी मदद करे। We scream to God to ask God to help us. और हम पुकारते हैं उससे कि ताकि वो We आके feel हमें uncomfortable about the sin. और जो पाप हमने किया है उसके लिए हमें अच्छा नहीं We लगता। feel disturbed about the sin. और हमको काफी डिस्टर्ब होता है जब हम पाप करते हैं। If you don't feel uncomfortable and disturbed about the sins, then I have a big question about your salvation. अगर आपने जो पाप किए जब आप विश्वासी हो गए उसके बाद में अगर आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा, आप उसके लिए बुरा नहीं महसूस कर रहे, तो आपका जो उद्धार है उसके लिए प्रश्न चिन्ह है। So that's how it is. और इस प्रकार से ये है। In Christ we are saints. और मसीह में हम संत है। In Christ we are righteous. इन मसीह में हम धर्मी है। But that does not mean that we don't sin. और इसका मतलब ये नहीं कि हम पाप नहीं करते, But when we sin, we come to God लेकिन जब हम पाप करते हैं हम प्रभु के पास आते with हैं boldness and confidence, और धैर्य से और साहस के साथ, knowing that God has already forgiven our sins. और ये जानते हुए कि यीशु ने हमारे सब पापों को क्षमा किया है। Jesus has already dealt with our sins on the cross. और यीशु ने क्रूस के ऊपर में हमारे सभी पापों को ले लिया। How many of you know that Jesus has not only forgiven the sins of your past, your present, even your future sins? और यीशु ने केवल हमारे पुराने पापों को ही नहीं और जो अभी हमने कर रहे वो पापों को नहीं, लेकिन आने वाले भविष्य में जो पाप करेंगे उन सब को भी उसने ले लिया। Some of you are shocked by listening to this. और हो सकता है कि आप में से कई लोग अचंभित हो गए सुन Since के। my sins have been forgiven, can I go and sin? और मेरे पाप पूरे क्षमा हो गए तो क्या मैं जाके पाप कर सकता हूँ? झूठ बोले तो काटेगा.
If you sin, you will experience its consequences. अगर आप पाप करेंगे तो उसका भुगतान आपको करना ही पड़ेगा। But when Jesus hung on the cross, he did not die for particular sins and particular people. He died for the sins of the whole world, of all generations, of all nations, of all time. He carried the sin of the whole world upon him. और केवल यीशु केवल एक पाप के लिए या एक जाति के पाप के लिए ही नहीं था, लेकिन वो पूरे संसार के पापों के लिए, संसार के हर एक व्यक्ति के लिए उस क्रूस पे मारा गया ताकि वो सारे पापों से हमें छुड़ा सके। This truth will make you come before God in confidence, knowing that my God has already forgiven my sins. My God is going to accept me. My God is going to forgive me. My God understands. When you know this, you'll come to Him with confidence. My Father accepts me as I am. और ये सत्य को जब हम जानेंगे तब हम धाड़स के साथ में हमारे परमेश्वर पिता के पास में आ सकते हैं और कहेंगे कि हमारा प्रभु हर चीज को जानता है, वो हमें ग्रहण करेगा, वो हमको इस प्रकार से नहीं छोड़ेगा, और उस विश्वास से हम उसके पास आ सकते हैं। In conclusion, और अंत में God sees you today as righteous. और प्रभु जो है आप सभी को एक धर्मी के रूप में देखता You है। are not just a sinner saved by grace, और but केवल- you are a saint sanctified to become like Christ Jesus. और आप केवल एक पापी नहीं है जो कि अनुग्रह के द्वारा बचाए गए, लेकिन आप एक शुद्ध और पवित्र किए गए संत है जो कि प्रभु के साथ है। There is a whole lot of things that I can say about this truth, और इस सत्य के बारे में काफी सारी चीजें आपसे कह सकता but हूँ, I'm well past time. लेकिन मेरा समय पूरा हो चुका है। Go and do your own study. आप जाके अपना अभ्यास स्वयं करें। I would encourage you to believe this truth. और मैं आपको उत्साहित करूंगा कि इस विश्वास को इस सत्य पर आप विश्वास Every करें। morning, rise up and declare, I am righteous in Christ Jesus. हर सुबह उठ के इसे आप घोषित करें कि मसीह यीशु में मैं धर्मी हूँ, This will radically change the way you live. और ये आपका जीवन पूरी तरह से बदल देगा।